So once again, warm welcome all of you in this session. Very good evening. So let us start with the session. Yes, what we have learned in the last session, we have learned about the different types of acceleration in case of a circular motion. When a certain body it is subjected to a circular motion, then yes, so what is the possibility of different types of acceleration in that circular motion? सो हमने कल देखा था कि कौन कौन से टाइप के एक्सेलरेशन एक सर्कुलर मोशन में रहते हैं, वो हमने देखा था. ठीक है, तो उसमें वंस अगेन आई विल रिवाइज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. यस, what are the different types of acceleration? The first acceleration that we have learned, that is AC, that is called as the centripetal acceleration. Okay, the centripetal acceleration. The next acceleration that we have learned, yes, that is tangential acceleration. Okay, in last lecture we have discussed about the net acceleration. बराबर है. What is the net acceleration? It is the resultant vector of AC and AT. Yes, it is the net is what? It is the resultant vector of AC and AT. And the third, that is the fourth one that we have to that we have learned, that is the, yes, that is what? Angular acceleration alpha, most common. Alpha, clear? Then AC, AT, ANET and alpha, clear? So this is the topic that we have learned in the last two session. Yes, yeah, like now लक्षात ठेवा AC आणि AT ला. It is also known as AC. It is also known as radial acceleration. Okay, now same आहे, बरोबर आहे. Now same राहणार, name will be same, but okay, denotation will be different. That is here AC, centripetal acceleration, will be also denoted by AR. त्यालाच काय म्हटलं जातं in short, that is radial acceleration. It is also known as the radial acceleration. क्यों बोला जाता है इसको radial acceleration? क्योंकि पता है, क्योंकि कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो तुम्हें पता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहाँ पे लगता है? टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस. टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस. एसी कहाँ पे लगता है? टुवर्ड द सेंटर, बराबर है, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द रेडियल एक्सेलरेशन. एक बात ध्यान में रखना, कहाँ पे भी कहाँ पे ऐसा डिनोटेशन देखा यार का मीनिंग क्या है? एसी ही रहेगा. ठीक है, सो मोस्ट कॉमन एसी ही प्रेफर करते हैं, मगर कहाँ पे यार दिखा तो समझ जाना कि ये रेडियल हमारा क्या है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही. ठीक है, देन नॉर्मल. ओके, एटी को अनदर एक नाम से भी जाने जाता है. एटी, उसका नाम क्या है? देखो, एटी का नाम है दैट इज एन. इसको क्या बोला जाता है? दैट इज नॉर्मल एक्सेलरेशन. ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन. व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल एक्सेलरेशन? यस, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर. यस, बिकॉज यू नो दैट इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वीटी. वीटी का डायरेक्शन ही है, तुम्हारा एटी का भी डायरेक्शन यही रहेगा, पता है ना. ठीक है, सो एटी एंड एसी आर व्हाट? परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बराबर है, परपेंडिकुलर है ना. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड डिनोटेड बाय एन. ओके, बाकी इनको तो कोई डिनोटेशन, अलग डिनोटेशन नहीं है. एनेट को कोई अलग डिनोटेशन नहीं है, अल्फा को भी अलग डिनोटेशन नहीं है. सिर्फ एसी और एटी को अलग डिनोटेशन है, वो भी मैंने तुमको बता दिया. क्योंकि ओके, क्वेश्चन में अगर एसी की जगह आर रहा, एटी की जगह पे एन रहा, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको. ठीक है, क्लियर? So note down the today's topic that we have to learn. Yes, that is, note down the topic, centripetal force. So today we have to learn about the centripetal force. Note down the topic, centripetal force. Centripetal force. Yes, this is very important in circular motion. Very important topic in circular motion. That is centripetal force. Okay, it is also. ठीक है, note down the topic. I will just note down the topic, that is centripetal force. Okay, so let us start with the topic, that is centripetal force. Very important. चलो note down क्या topics, that is centripetal force. चलो अभी देखेंगे centripetal force क्या रहता है, कैसे रहता है. Okay, actually it is the part of dynamics. अभी जो हम स्टडी करने वाले ये है बेटा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. ठीक है, डायनामिक्स, इसको क्या बोला जाता है? डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. सीएम इज व्हाट? नॉट अ सिकनेस, इट इज अ सर्कुलर मोशन. इसको क्या बोला जाता है? डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. कहां पर मतलब होता है डायनामिक्स? बिकॉज इन दिस केस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉज. ठीक है, यहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं? हम क्या स्टडी करते हैं? कॉज स्टडी कर रहे हैं बेटा. क्या स्टडी कर रहे हैं? कॉज स्टडी कर रहे हैं. काइनेमेटिक्स का कॉज स्टडी करेंगे, कॉज ऑफ काइनेमेटिक्स स्टडी करेंगे. इधर काइनेमेटिक्स, अभी ये थोड़ा सा वर्ड तुम्हें नहीं समझेगा काइनेमेटिक्स वगैरह,
तो भी अभी लर्न कर लो, दैट इज कॉज ऑफ काइनेमेटिक स्टडी कर रहे हैं हम, बराबर है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, ओके अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रही है, तो किस वजह से परफॉर्म कर रही है, उसके पीछे का क्या कॉज है, ओके दैट वी हैव लर्न इन द डायनामिक्स। वो किस में लर्न करते हैं हम, कॉज किस में लर्न करते हैं, डायनामिक्स में लर्न करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि अभी से हमें तो पता है मोशन तो हो रहा है, बराबर है, सर्कुलर मोशन तो हो रहा है हमारा, ठीक है, तो इसमें कॉज क्या है, क्यों हो रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के पीछे क्या है, ओके किस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेशन आया, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो टॉपिक तो नोट डाउन किया है, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या, ओके so it is the part of dynamics of the circular motion, that is we are going to learn about the what is the cause behind that particular acceleration and the motion। ओके तुम्हें पता है कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, बराबर है, मोशन में है इसका मतलब उसके ऊपर कोई तो भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर तुम मोशन में हो, अगर तुम मोशन में हो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर कोई तो भी फोर्स लग रहा है, तभी जाके तुम मोशन में आओगे। मेरे पास में मोबाइल है, मैं मोबाइल को, ओके वो ऑटोमेटिक तो मोशन में तो नहीं आएगा ना, ठीक है, कोई जादू तो नहीं है, कोई जादू अचानक से मोशन में आ जाएगा नहीं ना, तब मैं जब उसमें फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, उसके बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट आने के बाद में वेलोसिटी, वेलोसिटी आने के बाद में एक्सेलरेशन। तो दीज आर ऑल द डिपेंडेंट फिनोमिना दैट विल बी हैपन। सो उस कॉज को हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर मोशन तो पता है सभी को, तो लेट अस ड्रॉ वन सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर मोशन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लेते, बड़ा सर्कुलर मोशन ले लिया हमने, ठीक है, एक छोटी सी बॉडी ले लेते यहाँ पे, एक छोटा सा बॉडी, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द बॉडी विच परफॉर्म द सर्कुलर मोशन, एक बॉडी है, और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो उसको, पार्टिकल भी बोल देते कोई, तो एक बॉडी है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अभी तुमको क्या बताएं, यस लेट अस सपोज अभी सर्कुलर मोशन है तो उसका कोई तो भी रेडियस रहेगा, बराबर है, सर्कुलर मोशन है तो उसका कोई तो भी क्या रहेगा, रेडियस, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर एंड लेट्स सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन, ओके यहाँ पे हम रेडियस को r से डिनोट करेंगे, स्मॉल r से, ओके। लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर बॉडी इट इज हैविंग द मास m, जो भी बॉडी यहाँ पे सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, बॉडी का मास क्या है बेटा, जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है उसका मास क्या है, यम, ठीक है, और रेडियस क्या है बेटा, स्मॉल आर, रेडियस क्या होगी, स्मॉल आर होगी, क्लियर। So let us consider the the particle or the body which is subjected to a circular motion having the mass m and having the radius r, having the radius r. Now you know that when it is in the circular motion, okay, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो तुम्हें पता है, ओके बाकी कोई एक्सेलरेशन रहेगा नहीं रहेगा वो पता नहीं, मगर एक एक्सेलरेशन वहां पे जरूर रहेगा, वो एक्सेलरेशन कौन सा है, चलो बताओ, यस कौन सा एक्सेलरेशन है, पता है, अभी लर्न किया है ना हमने, वी आर ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट नेसेसरी एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, if a body performs, okay performs circular motion, if a body performs circular motion, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो उस बॉडी में क्या आएगा, ओके उस बॉडी में एक्सेलरेशन जो रहेगा, वो एक्सेलरेशन कौन सा है, दैट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, पता है ना, बताया था ना, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन है, इफ एनी बॉडी, ओके इफ एनी बॉडी, इफ इट इज इन द सर्कुलर मोशन, इफ इट इज इन द सर्कुलर मोशन देन इट possesses, it must possesses the centripetal acceleration, that it must possesses the centripetal acceleration. If any body, if it perform the circular motion, then it must possesses the circular motion. This is the must, ठीक है, must, उसके पास में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन रहेगा ही, ठीक है, बाकी एक्सेलरेशन रहेगा नहीं रहेगा वो डिपेंड है, ठीक है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है, अल्फा वो बाद में देखेंगे, वो है नहीं पता, मगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि पता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, ड्यू टू व्हाट, ये तो रिपीट हो रहा है बेटा, ड्यू टू चेंज इन व्हाट, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि हर एक टाइम में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे डायरेक्शन ये रहेगा, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन ये रहेगा, तो हर एक टाइम पे एक्सेल, ओके इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन ये रहेंगे, यहाँ पे बॉडी आ गई तो उसका डायरेक्शन ये रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेंगे तो बॉडी इसका डायरेक्शन ये रहेगा, ठीक है, हर एक टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज होता रहेगा, सो इट्स so due to the change in direction that body possesses the centripetal acceleration, so circular motion है तो centripetal acceleration रहेगा, ठीक है, तो centripetal acceleration का तुम्हें हाँ डायरेक्शन भी पता है, डायरेक्शन भी पता है, और क्या डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, पता है, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, ठीक है, ये डायरेक्शन बराबर है, डायरेक्शन पता है, फॉर्मूला क्या है, एसी का फॉर्मूला, यस बताओ, दैट इज v square by r,
लर्न किया है ना, एसी का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाय आर, और इसको क्या लिखते हैं, एसी को क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज यम, यम नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये तो सब। So these are the things that we have already learned in the last two sessions. अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो ठीक है, उसमें उसके पास में क्या रहेगा, दैट इज centripetal acceleration. And what is the direction and the magnitude of the centripetal acceleration toward the center along the radius, it is the direction. And what is the formula, that is v square by r and r omega square, it is the formula. Now let us suppose, now this body it perform the circular motion, इसके पास में क्या है, AC भी है, ठीक है। So now in this case देखो यहाँ पे, ठीक है, बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया है। अभी मुझे बताओ, ठीक है, अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है। इफ इन दिस केस देयर इज अ एक्सेलरेशन, बराबर है, सो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब इस यहाँ पे कोई तो भी फोर्स होगा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कब आता है किसी भी बॉडी में, एक्सेलरेशन कब आता है, जब कभी भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तभी जाके वो एक्सेलरेशन आएगा ना, ठीक है। लेट्स सपोज एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ एफ, उसके बाद में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके बाद में वेलोसिटी आएंगी, ओके, उसके बाद में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, बराबर है। तो इस एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है, उस बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो whenever there is a acceleration, then there must be a force is acting on that particular body, okay, and the force is associated with that body, or the force is associated with that body whenever a body is showing the acceleration। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन शो कर रही है तो उसके पास में क्या रहेगा, दैट इज फोर्स, ओके, उसके पास में क्या रहेगा, फोर्स। अभी ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल भी क्या है, इसके पास में एक्सेलरेशन है, तो इसके ओके, तो यहाँ पे कहा भी तो भी फोर्स रहेगा, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फोर्स, ओके, which causes which causes क्या कॉज कर रहा हो, which causes the AC, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा, ठीक है। सो AC का जो वजूद है, ठीक है, यहाँ पे AC किस वजह से आया है, ओके, वो किसके वजह से आया है, किसी तो भी फोर्स की वजह से आया होगा, ठीक है, किसी किसी भी तो भी एक फोर्स से वजह से आएगा, ओके। दिस पर्टिकुलर फोर्स, द फोर्स विच कॉज द AC, जो फोर्स AC को कॉज कर रहा है और जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट फोर्स इट इज कॉल्ड एज, देखो मैंने क्या बोला है, द फोर्स विच प्रोड्यूसेस द AC। ऐसा कोई तो भी फोर्स है जो एसी को प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि हमें पता है किसी बॉडी अगर एक्सेलरेशन में है तो उसको कोई तो भी फोर्स है उसको वहां पे, ओके। अगर तुम मोशन में हो, तुम्हारी बाइक मोशन में है, तुम मोशन में, तो कोई तो भी फोर्स वहां पे लग रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे भी सर्कुलर, यहाँ पे भी तुम्हें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे कोई तो भी फोर्स है, ठीक है, वहां पे कोई तो भी फोर्स है जो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। दैट सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच कॉजेस व्हाट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बराबर है। सेंट्रीपिटल तो वर्ड कॉमन है, सिर्फ वहां पे एक्सेलरेशन की जगह पे क्या है, दैट इज फोर्स, क्लियर। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है जो वहां पे क्या कॉज कर रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कॉज कर रहा है, ठीक है। पता चला अभी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, क्या कॉज करेगा, दैट इज एसी, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी एसी का हमें देखना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्लियर, नोट डाउन किया है सभी टॉपिक, नोट डाउन किया है कि नहीं, ठीक है, नोट डाउन किया है, क्लियर करो ऑल ड्राइंग्स जस्ट नाउ। तो नाउ अभी हमें देखना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। हमें तो पता चल गया है कि फोर्स तो वहां पे है क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को कॉज करने वाला कोई तो भी फोर्स होगा, उस फोर्स का नाम दिया हमने। कोई अलग नाम क्यों देंगे, क्योंकि वो अलग नाम हमारे पास में है ना, सेंट्रीपिटल, तो उसका नाम दिया हमने सेंट्रीपिटल, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स करके नाम तो दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी इसका डिनोटेशन भी दे देंगे, क्या होगा डिनोटेशन बताओ, सेंटर फोर्स है तो एफ तो आएगा, सेंट्रीपिटल है तो डिनोटेशन दे देंगे सफिक्स सी, तो डिनोटेशन हो गया। तो ओके, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या होगा इसका, बोलो जल्दी, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन कहाँ पे होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, कहाँ पे होगा, अबे जहाँ, ओके, यहाँ पे देखो जहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, यस, ओके, डन, नॉट एन इश्यू। सो ये अगर वहां पे डायरेक्शन देखो यहाँ पे, सो फोर्स तो है, ठीक है, फोर्स को सो आवाज आ रही है ना, सो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसके वजह से क्या होगा, डायरेक्शन, यस, नाउ नोट इट डाउन।
तो डायरेक्शन क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का? द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। यस, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा। फोर्स का फॉर्मूला दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। Okay, we know that the formula for the force is what? Mass into acceleration. ठीक है, mass into acceleration. Then what will be the direction of force? Force का direction क्या रहेगा? यहाँ पे जो भी direction रहेगा तुम्हारा acceleration का, वही direction रहेगा तुम्हारा force का। ठीक है, ओके, जो भी direction रहेगा acceleration का, वही भी direction रहेगा तुम्हारा force का। तो यहाँ पे acceleration का direction क्या है? Toward the center along the radius. So in this case, the force will be also that Fc will be acting okay along this particular along the radius and toward the center। fc कहाँ पे एक्ट होगा? toward the center। तो fc का भी डायरेक्शन कैसे रहेगा? fc along the radius, along the radius। so fc will be along the radius that is toward the center। fc कहाँ पे रहेगा? along the radius and toward the center। clear? तो fc का डायरेक्शन पता है, अभी देखेंगे फॉर्मूला। तो नाउ लेट्स चेक अबाउट द फॉर्मूला। फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। तो fc का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, so centripetal force will be Fc mass, okay, acceleration, यहाँ पे acceleration कौन सा आएगा? that is centripetal acceleration। okay, acceleration क्या आएगा? that is centripetal acceleration। so Fc का फॉर्मूला क्या होगा? Fc will be equal to mass into acceleration। acceleration, centripetal acceleration, we know that what is the formula for the centripetal acceleration? that is v square by r, v square by r। so what is the formula for fc? fc का formula क्या है? that is mv square by r। what will be the formula for fc? that is mv square by r। let us take for the another formula। okay, let's take for the another formula। just we will use the ac as an r omega square। इसी की जगह पे क्या यूज करेंगे? दैट इज AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, पता है। देयरफॉर FC इज इक्वल टू मास इनटू AC। FC इज इक्वल टू मास इनटू AC पुट कर दो R ओमेगा स्क्वायर। so centripetal force will be mr omega square। centripetal force will be mr omega square। these both the formulas are very important। these both formulas are very important। note it down। so centripetal force will be given by the formula that is mr omega square or mv square by r। clear? note down करो। clear? डायरेक्शन पता है, डिनोटेशन पता है, डायरेक्शन पता है, फॉर्मूला दो फॉर्मूले रहेंगे इसमें, एफ सी इक्वल टू एम स्क्वायर बाय आर एंड एम आर ओमेगा स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले देख लिए, ठीक है। क्लियर? चलो नोट डाउन किया है? फास्ट नोट डाउन किया है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर। कैसे आया? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या रहता है हमेशा? न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन्स लॉ से फोर्स क्या रहता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट समृद्धि? हैव यू नोटेड डाउन और नॉट? हाँ, ओके, शरीर का प्रॉब्लम है नेटवर्क का। देन व्हाट अबाउट अदर्स? ओके डन, नोट इट डाउन। पता है, वन सेकेंड रिवाइज करें, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, ठीक है। फोर्स को पता है न्यूटन सेकंड लॉ से क्या रहेगा? न्यूटन सेकंड लॉ से, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ से दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो सेम है, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह पे एसी का एक्सेलरेशन हमें पता है, एसी क्या रहता है? वी स्क्वायर बाय आर, और आर ओमेगा स्क्वायर उसको पुट किया तो एफसी का फॉर्मूला मिलेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाय आर। सो दीस आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर आवर अपकमिंग सेशन। तो नोट इट डाउन। अभी देखो, क्लियर हो गया? डन। नाउ अभी देखेंगे कि एफसी जो है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ठीक है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ पे? देखो, अगर इसके बारे में देखें तो यहाँ पे जब हमने फोर्स स्टडी करेंगे, लॉज ऑफ मोशन ने हमने जो भी फोर्स स्टडी किया है आपको पता होगा, तो वहां पे तो ऐसा कोई तो भी फोर्स नहीं दिखा। फोर्स के जो फॉर्म्स थे, जैसे टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, देन इलास्टिक फोर्स है, ये फोर्स के फॉर्म देखे थे, मगर ऐसा कोई फॉर्म हमें सेंट्रीपिटल फोर्स करके वहां पे कोई फॉर्म नहीं दिखा था। मगर ये फोर्स है कि नहीं? ठीक है, ये ऑफ कोर्स इट इज अ फोर्स, ये रियल फोर्स है, इट इज नॉट एन इमेजिनरी फोर्स। ओके, ये रियल फोर्स है, मगर एक्चुअल में ये कोई फोर्स हमें दिखता नहीं है। ये कोई तो भी फोर्स वहां पे रहता है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई फोर्स एक्चुअल में नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज अ रियल फोर्स, रियल फोर्स,
मगर यहाँ पे वहां पे जो जब कभी भी तुम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो तो वहां पे एक फोर्स रहेगा जो फोर्स से सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाता है। देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर जस्ट वी हैव लर्न अबाउट द एटम्स एंड एटम मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई। बराबर है, नील बोर का एक एटम ले लेते हैं हम, नील बोर का। ठीक है, नील बोर ने हमें क्या बताया था, लेट अस सपोज दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, एक ऑर्बिट है। ठीक है, ऑर्बिटल। ठीक है, तो वहां पे क्या रिवॉल्व हो रहा है पता है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, पता है। तो नाउ ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, अभी यहाँ पे ले लो, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा, बराबर है। अभी हुआ ना, तो हमने वहां पे ले लिया था सेंट्रिपिटल फोर्स, लिया था कि नहीं लिया था। देखो, so in that case we have learned about there is an electrostatic force of attraction between the electron, okay, and this particular nucleus। यहाँ पे क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, this particular electrostatic force of attraction will be there, yes, and this particular electrostatic force of attraction will become the centripetal force, will become the centripetal force, which is necessary, which is necessary for circular motion, which is necessary, okay, which is necessary for circular motion, which is necessary for circular motion। कोई भी अगर सर्कुलर मोशन में बॉडी परफॉर्म हो रही है तो उसमें एक सेंट्रिपिटल फोर्स रहेगा। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर फोर्स विच इज कम ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दैट केस, okay, in that case we have observed that this particular electron it is revolving around the nucleus, बराबर है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वहां पे एफसी कहाँ से बना, एफसी इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि ये कोई फोर्स नहीं है एक्चुअल में, ऐसी कोई फोर्स होती नहीं है, सेंट्रिपिटल फोर्स एक्चुअल में ऐसी कोई फोर्स होती नहीं। ठीक है, ये कोई तो भी फोर्स है, ओके, कोई फोर्स वहां पे जो एग्जिस्टेंस में है वो फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाती है, ऐसा बोला जाता है। सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में फिर से एक बार बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, एक फोर्स नहीं भी है। देखो मैं ये दोनों वे से बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में फोर्स नहीं भी है और ये फोर्स क्या है, एक कोई तो भी एक फोर्स वहां पे रहेगी जो फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स बनेगी, बनेगी। एक्चुअल में पहले तो एग्जिस्टेंस में नहीं है, ओके, एक कोई तो भी फोर्स वहां पे रहेगी वो जो वहां पे बन जाएंगी। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जो तुम्हारा बाद में तुमको क्या प्रोवाइड करेगा, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ओके, ये ले ला पहला, ये तुमने पहला एग्जांपल देख लिया, ले ला नेक्स्ट एग्जांपल ग्रेविटेशन का ले लेंगे, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन। तो इसमें एक बात ध्यान में रखो कि ये कोई फोर्स नहीं होते, ठीक है, बट इट इज अ रियल फोर्स। एक्चुअल में कोई फोर्स है जो सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाती है। एक बात ध्यान में रखना इसके बारे में, सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में, एक कोई तो भी फोर्स है जो ये सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होती है, बन जाती है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बन गया, सेंट्रिपिटल फोर्स बन गया। ठीक है, अभी अनदर एग्जांपल ले लेंगे, लेट्स सपोज दिस इज द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अराउंड द सन। ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा अर्थ, 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 अर्थ। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व हो रही है, लेट्स सपोज दिस इज द सन नाउ, ये है तुम्हारा सन। ठीक है, ये है हमारी अर्थ, छोटी सी अर्थ। ठीक है, ये है अर्थ रिवॉल्व हो रही है, बताए। तो अभी लार्ज बॉडी के केस में तुम्हें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज एफ जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो भी यहाँ पे डिस्टेंस होगा वो आर रहेगा, बराबर है। अब ये ग्रेविटेशन में तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेविटेशन 11 का टॉपिक है। So यहाँ पे देखो, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू पर्टिकुलर बॉडीज दैट इज अर्थ एंड सन। सन और अर्थ के बीच में क्या है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन दीज टू पर्टिकुलर बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो यहाँ पे ओके, सेंट्रिपिटल फोर्स जो है, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या रहेगी तुम्हारी, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स एफ सी विल बी, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स ऐसी कोई फोर्स ही नहीं है जो फोर्स ओके एक्चुअल में है वो फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाती है। ठीक है, जो एक्चुअल में है वो सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाती है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एग्जिस्टेंस में है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्टेंस में है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बनेंगी तुम्हारी, सेंट्रिपिटल फोर्स बनेंगी।
सो ऐसा रिमेम्बर तुम्हें ध्यान में रखना है। सो क्लियर। और एक एग्जांपल है, जैसे मेरे पास में कोई तो भी स्टोन है, उस स्टोन को मैंने क्या किया, ऐसे एक रोप ले लिया, ठीक है, रोप से उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा टाई कर दिया, देन इसको ऐसा मैंने घुमाया घुमाया बहुत जोर से घुमाया घुमाया बहुत जोर से घुमाया, तो इसमें रोप में क्या आ जाएगा, टेंशन आता है, रोप में क्या आता है, टेंशन आता है, एंड दिस पर्टिकुलर टेंशन विल बिकम, यस दिस पर्टिकुलर टेंशन will become yes will become centripetal force, will become the centripetal force, will become the centripetal force. Clear? Okay, will become the centripetal force. Once again I will repeat the sentence. एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स नहीं है, ऑफ कोर्स इट इज एन रियल फोर्स, पर एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं रहता है। वहां पे जो भी फोर्स रहेगा जो सर्कुलर मोशन में, ठीक है, तो वो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या हो जाती है, बन जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा ग्रेविटेशन के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स बन गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन गया। यहाँ पे रोप को रिवॉल्व, ओके, स्टोन को टाई करके तुम रोप को ओके उसको रिवॉल्व कर रहे हो, तो वहां पे टेंशन बन गया तुम्हारा सेंट्रिपिटल फोर्स। सो दीज आर द वेरियस डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स। क्लियर है? ओके, क्लियर है? नोट डाउन करो, यहाँ पे नोट डाउन करो। ओके, one more thing is remaining in this case, that is very very important। एक सेंटेंस में अभी लिख के देने वाला हूँ तुमको, ठीक है, वो प्रॉपरली नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। सेंट्रिपिटल फोर्स, वो वहां से बड़े प्रॉब्लम वही से सॉल्व होंगे तुम्हारे सेंट्रिपिटल फोर्स के। देखो सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस क्या है, ये क्या रहते हैं तुम्हारी नेट फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या रहते हैं, ओके, इसको एक सेंटेंस याद में रखना। ये जो फोर्स रहती है दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी नेट फोर्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज नथिंग बट also called as the net force toward the center, it is nothing but the net force toward the center। net force क्या रहता है, net force it is what, yes, resultant of the two force। let us consider now one more, two forces will be acting over here in this case। now I am going to draw one more body over here having the mass m, which is subjected to one force over here and another force which is over here, okay, in the opposite direction t2। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या रहेंगी तुम्हारी, दैट इज T1 माइनस T2 विल बी द नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या रहेंगी तुम्हारी, नेट फोर्स विल बी व्हाट, T1 माइनस T2। नेट फोर्स पता है ना तुम्हें, जैसे अगर हमारे पास में एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी है किसी सीलिंग के सरफेस के ऊपर रखे हुए, देखो लेट्स सपोज हमें एक यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन, ओके, कोई ये बंदा है वहां पे एक अपोजिट साइड पे एक 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, बराबर है, ओके, अपोजिट साइड पे 20 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेट फोर्स क्या रहेगा, नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर जो लगेगा मुझे बताओ, 20 माइनस 30 न्यूटन फोर्स लगेगा, बराबर है। तो टोटल नेट फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस बॉडी विल बी व्हाट, 10 न्यूटन। नेट फोर्स क्या होगा, 10 न्यूटन। तो डायरेक्शन बताओ कहाँ पे खींचेगा वो, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स वहां पे लगेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं कि इट इज नथिंग बट द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। जो भी नेट फोर्स होगा, ओके, सब्ट्रैक्शन करके जो भी हमें नेट फोर्स मिलेगा, that net force will become the centripetal force। सभी टॉपिक यहाँ पे कवर हो गए तुम्हारे सेंट्रिपिटल फोर्स के, ओके, क्लियर है? नोट डाउन करो सभी टॉपिक्स सेंट्रिपिटल फोर्स के। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स T1 माइनस T2 से भी अभी बता, टेंशन रह सकता है यहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स रह सकता है, बराबर, स्प्रिंग फोर्स नहीं है, टेंशन रहेगा, ठीक है। अभी देखो ये एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, एग्जाम्पल क्लियर करो। चलो, नाउ let us consider one stone। क्या है बेटा, ये स्टोन है, इसको मैंने क्या किया, टाई कर दिया एक रोप से, ठीक है, टाई कर दिया, बराबर है। और मैंने क्या कर दिया, इसको एक घुमा दिया, ऐसे जोरों से घुमा दिया ऐसे जोर जोर से घुमा रहा है। लेट्स सपोज ये एंगुलर मोशन में आ गया और उसका वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी विल बी ओमेगा। इसका मास है बेटा, मास स्टोन का स्मॉल m, और रेडियस, जिस रेडियस से हम इसको घुमा रहे हैं वो रेडियस है r। अगर हमें यहाँ पे पूछेंगे कि व्हाट विल बी द द व्हाट विल बी द टेंशन, व्हाट विल बी द टेंशन इन स्ट्रिंग, तुम्हें क्या पूछा है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, स्ट्रिंग तो पता है ना, रोप को बोलते हैं हम स्ट्रिंग, ठीक है। तो व्हाट विल बी द नेट टेंशन इन द स्ट्रिंग, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पूछा है, व्हाट विल बी द नेट टेंशन, ओके, व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग।
So in that case, now you know that when this body will perform the circular motion, then it must possess the centripetal force. Okay, and this centripetal force, it is nothing but takes the form of what? Tension. क्या लगेगा? टेंशन लगेगा. टेंशन टुवर्ड द सेंटर. एक्चुअली वहां पे टेंशन है. वो टेंशन क्या प्रोड्यूस? ओके, टेंशन टेंशन ही क्या देगा तुम्हें? सेंट्रिपिटल फोर्स देगा. टेंशन ही क्या देगा तुम्हें? टेंशन तुम्हारा बनेगा, देगा नहीं, टेंशन ही बनेगा तुम्हारा सेंट्रिपिटल फोर्स. तो टेंशन इज इक्वल टू एफ सी, और एफ सी इज इक्वल टू टेंशन. ओके, दोनों भी लिख सकते हो. तो टेंशन, एफ सी का फॉर्मूला तो पता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर. क्लियर. तो टेंशन कहाँ से मिलेगा तुम्हें? मास पुट कर दो, आर पुट कर दो, ओमेगा पुट कर दो. इन दैट केस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग. ओके, सेंट्रिपिटल फोर्स पूछा है तो डायरेक्टली तुम एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर पुट कर दोगे. एम पता है, वी पता है, आर पुट कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? एफ सी भी मिल जाएगा. क्लियर है? नोट डाउन कर लो. बराबर. So we will stop here due to the bad network condition. We will discuss remaining topic on tomorrow.